Hello everyone. So in this session we are continuing what we were studying about the topic evolution, and in this session we are going to continue studying about the evidences or the proof for evolution. As we said, this is the continuation of the same topic. So again, in this what we are going to cover is we are looking at the objective that we will be able to give evidences of evolution. मतलब पिछली बार हमने पढ़ा कि इवोल्यूशन होता है, ये तो हमें पता है, वो क्या क्या प्रूफ हो सकते हैं जिससे हम रीज़न के साथ कह सकते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ था एंड आई हैव द प्रूफ फॉर इट. So we studied that scientists who were looking for different evidences to prove that evolution happens classified all the evidences into 6 different categories. What were they? Number 1, morphological evidence. Number 2, anatomical evidence. Third, vestigial organs. Fourth, paleontological evidences. Fifth, connecting links. And the sixth, embryological evidence. Out of the 6, we have already covered the first 3 in the last session. मतलब morphological, anatomical और vestigial organs हमने पिछले सेशन में ख़त्म कर दिया था, which means we are going to move ahead from the topic and we will discuss paleontological, connecting links and embryological evidence in this session. So let us begin with the 4th evidence for evolution, which is called paleontological evidence. The term paleontological, it comes from the word paleontology. तो paleontological, paleontology से आता है, and paleontology का मतलब क्या होता है? It means the study of fossils. अब fossils क्या होते हैं? If you can recall, हमने पढ़ा था that on the earth different events happen like earthquake, disaster, fire, floods, etc. एंड इसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं. जो मर जाते हैं वो ज़मीन पे रह जाते हैं एंड देन धीरे धीरे पानी, हवा, इन सब के साथ में उनके ऊपर मिट्टी की परत जमती रहती है. धीरे धीरे आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जब हम वापस ज़मीन अगर खोदेंगे तो हमें नीचे ज़मीन के अंदर उनके डेड रिमेन्स मिलेंगे. ओके, सम रेमिनेंट्स जैसे कि उनकी हड्डियाँ, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ देयर DNA, वी कैन फाइंड देम. These remaining particles or the remnants of such organisms preserved underground are called fossils, and the study of these fossils is called paleontology. So when we are looking at paleontological evidences, we are looking at how by studying fossils we can give evidences for evolution. So let's talk about how can fossils be evidence of evolution. जितना ये टर्म सुनने में डिफ़िकल्ट है ना, कॉन्सेप्ट उतना ही ईजी है. When I think of this, मेरे दिमाग में ये एक एग्जाम्पल आता है. हमने एलिगेटर्स देखे हैं, हमने मगरमच्छ देखे हैं. वी ऑल्सो सी लिजार्ड्स, छिपकली देखते हैं घर पे. हैव यू एवर गॉट द थॉट कि छिपकली, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स को देख के क्या आपको डायनासोर की याद आती है? मुझे तो डेफिनेटली आती है. आई मोस्ट ऑफन फील कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स ना ऐसे डायनासोर को पिचका के उनका मिनी वर्जन है. सो द पॉइंट इज, हाउ डिड आई गेट टू नो कि डायनासोर देखने में कैसे दिखते हैं? ये तो मुझे तभी पता चला जब मैंने फॉसिल्स के बारे में स्टडी किया. हमने डिग किया, फॉसिल्स निकाला एंड देन वी फाउंड कि ओ, द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स विच वी नेम डायनासोर्स are very similar to maybe alligators or crocodiles or lizards that we see today. इसका मतलब ज़रूर ये जो आज के lizard और crocodile और alligators हैं, ये evolve होके आए हैं पुराने ज़माने के dinosaurs से, because there are some common features. So as soon as I am able to prove that they have common features, they are coming from a common ancestor, this directly gives me an evidence that yes, evolution has happened. और ये एविडेंस आपको कैसे मिला? आपको फॉसिल्स को देख के मिला. फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. वी नाउ कम टू द नेक्स्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, जिसका नाम है कनेक्टिंग लिंक्स. अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, सो आई वुड रिक्वायर यू टू बी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस. ओके, कनेक्टिंग लिंक्स, नाम से पता चल रहा है कि
कुछ चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है, कोई लिंक है दो चीज़ों के बीच में। ये क्या दो चीज़ हैं और ये लिंक क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड टू अंडरस्टैंड दिस वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी स्पेशल एनिमल जिसका नाम है डकबिल प्लैटिपस। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक बहुत ही पिक्यूलियर क्यूट लुकिंग एनिमल है जो पानी में फ्लोट कर रहा है। यू कैन सी द इमेजेस ऑन द गूगल लेटर ऑल्सो। इसका नाम है डकबिल प्लैटिपस। अभी डकबिल प्लैटिपस के पास में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट there are two special features mentioned. Number one, it can lay eggs, and the second one, it has mammary glands to feed milk to the baby. Mammary glands क्या होती हैं? Those glands or the organs through which mothers feed milk to their baby. You can see this in human women also. You can see this in cow. You can see this in any female animal that you see around. So duckbill platypus के पास दो चीज़ें हैं. Number one, it lays egg. Second, it has mammary gland to feed milk to its baby. Now think of it. We are mammals. We have mammary gland. And all the mammals that you know, okay, you can think of cows, you can think of goat, and different animals which are mammals. All of them have mammary gland. But do mammals lay egg? क्या हम लोग अंडे देते हैं? No, right? We give birth to babies. We don't lay eggs. Eggs कौन lay करते हैं? There are birds, you have lizards, snakes, different reptiles lay eggs. So mammals don't lay eggs. Reptiles lay eggs. Which means duckbill platypus के पास में mammary glands हैं जो mammals के features हैं. And it also lays eggs जो reptiles के features हैं. इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज सम लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. हो सकता है रेप्टाइल्स और मैमल्स किसी कॉमन एंसेस्टर से आए हैं या फिर रेप्टाइल्स से मैमल्स इवॉल्व हुए हैं. इन ईदर वेज देयर इज सम लिंक. और ये लिंक मुझे किससे पता चला? सम एनिमल्स हु हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, जैसे डकबिल प्लैटिपस, ये लिंक का काम कर रहा है. इस लिंक से मुझे इवोल्यूशन का प्रूफ मिल रहा है. दैट इज वाई दिस एविडेंस इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. सो वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग लिंक एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ डकबिल प्लैटिपस. ठीक है, डकबिल प्लैटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स एंड हेंस देयर हैज बीन एन इवोल्यूशन फ्रॉम रेप्टाइल्स टू मैमल्स. ये हमने जाना कि रेप्टाइल्स से मैमल्स इवॉल्व हुए हैं क्योंकि डकबिल प्लैटिपस हमें वो एग्जाम्पल दे रहा है. उसके अलावा हमारी टेक्स्ट बुक में दो और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं. इनके नाम हैं लंगफिश एंड पेरीपैटस. यू कैन सी दिस एग्जाम्पल्स गिवन इन द स्लाइड. बट I will not explain in detail how they are connecting links because it is going to become very complicated. In the class notes, I have written their features in very concise way. You will have to take a little effort to learn about them. If you have any doubt, you can personally contact me, but I won't be explaining these two organisms in detail. Examples आपको अच्छे से याद रखने हैं इनके तीन: डकबिल प्लैटिपस, लंगफिश एंड पेरीपैटस, एंड इनके स्मॉल डिस्क्रिप्शंस जो क्लास नोट्स में लिखे हुए हैं. This now brings to our last evidence of evolution जिसका नाम है embryological evidence. Embryological, ये टर्म कहाँ से आता है? From the word embryo. अब embryo क्या होता है? The baby which is there inside the womb of the mother, उसको कहते हैं embryo. The growing baby. You must have seen जब अल्ट्रासाउंड होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का, तो उसके अंदर में वो छोटे बच्चों की फोटोज दिखाते हैं. ओके, दैट ग्रोइंग बेबी इनसाइड द वूम्ब ऑफ अ मदर. ठीक है, मदर की वूम्ब के अंदर जो बेबी है उसको एम्ब्रायो बोलते हैं. वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, इट इज स्टिल डेवलपिंग. ओके, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रायो. नाउ लेट अस सी हाउ द स्टडी ऑफ एम्ब्रायो कैन बी एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. कैसे एम्ब्रायो को देख के मुझे पता चला कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है. Now carefully observe this picture which is given on the slide. It is showing the growing embryo of different animals. There is fish, tortoise,
chicken, pig, cow, man. ओके, द फर्स्ट जो नंबर 1 दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि जब बेबी एकदम नया है, मे बी 1-2 months इनसाइड द मदर्स वूम, तो वो अंदर देखने में कैसा होता है. जो नंबर 2 लिखा है, इट इज मे बी आफ्टर 6 months इनसाइड द मदर्स वूम, हाउ डज द बेबी लुक. एंड द लास्ट पिक्चर इज बस बॉर्न होने के पहले, ओके, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ डेवलपमेंट, हाउ डज द बेबी लुक इनसाइड द वूम ऑफ द मदर. कि सब कुछ मदर के वूम के अंदर है, इट इज स्टिल एन एम्ब्रायो. नाउ यू सी, लास्ट स्टेज में सब अलग अलग दिख रहे हैं. फिश अलग है, ह्यूमन अलग है, पिग अलग है, सब दिखने में अलग अलग है. बट इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, स्टार्टिंग में सारे ऑर्गेनिजम्स एकदम सेम दिख रहे हैं. देयर इज अ हाई लेवल ऑफ सिमिलैरिटी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो. शुरू में सब कितने सिमिलर हैं, देखो, छोटा सा ऊपर हेड है एंड नीचे टेल जैसा है. स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम, बट डेवलप होते होते बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं. दिस गिव्स मी अ क्लू दैट अगर उनका एम्ब्रायो देखने में सेम है शुरू में, डेफिनेटली देयर वर सम लिंक बिटवीन देम. जरूर कोई एंसेस्टर है उनका जो पहले के टाइम में बिल्कुल सेम दिखता था, बट इवोल्यूशन के साथ अभी ये सारे ऑर्गेनिजम्स अलग दिखने लग गए. So how did I get this evidence? I got this evidence by looking at the embryo. Embryo ने मुझे बताया कि ज़रूर इनका कोई common ancestor है. इसीलिए इस evidence को हम लोग बोलते हैं embryological evidence. Hence we can read the conclusion for this as similarity in the initial stage of embryonic development indicates that they all have common origin. Okay? इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी, उससे पता चलता है कि ये किसी कॉमन ओरिजिन से आए हैं. दिस प्रूव्स दैट दीज ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड हेंस इट इज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक. सबसे डिफ़िकल्ट बोल लूँ या सबसे लंबा टॉपिक था इस चैप्टर का. इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं बहुत सिंपल है. आज हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड दैट अपार्ट फ्रॉम द 3 एविडेंसेस दैट वी लर्नड इन द लास्ट क्लास, हमने 3 और नई एविडेंसेस पढ़ी जिनका नाम था पैलियोंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक्स एंड एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस. आई होप दिस कंबाइंड विथ योर क्लास नोट्स विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग वेरी ईजी. इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको पता चले कि आपको जो समझ में आया वो आप क्वेश्चंस के आंसर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं. थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस एंड आई होप यू विल लर्न बेटर. हैव अ नाइस डे.